इससे पहले कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल देखें, हम पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हाउ टू डू राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ आपने बहुत ज्यादा पढ़ी है इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, सो कैन यू टेल मी, आर यू बोथ क्लियर कि हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर? Yes, ma'am. Yes. मोहित, आपको भी क्लियर? So can you tell me, for example, let's write down few examples. I want you to answer. For example, 13. So round off to tens. So इसका क्या आंसर होगा? What is 13 rounded off to tens? Hmm? Who can tell me what is the rounding off answer of 13? 10. 10. ठीक है, मैं कुछ examples लिखती हूँ. I want to see कि do you know the. So first I'm writing number. Second में I will be writing down rounded off to which place value rounded off to. ठीक है, and last column में हम लिख लेंगे the answer. ठीक है, so first of all I thought to like I have asked about 13 और इसको हमने round off करना था tens पे. ठीक है, and the answer Mohit just told it is 10. ठीक है, sorry, is it clear how it is 10, Abrish? Yes. So the procedure is that to which place value we need to round off, we will underline the digit on that place value. Underline the digit next to that place value. हमने tens पे round off करना है. So ये tens है ना आपका place value की form में अगर लिखे हमने tens पे round off करना है. So you need to see the next number to that place value. If that number is less than 5, so you will just change it into 0. If that number is bigger than 5, then you will add 1 to the place value next to it. ठीक है. So let's say the next I'm writing 257. So what if you round off to tens? क्या आंसर होगा इसका? If you round it off to tens, 257. Ma'am, 260. 260. And Mohit, what will be the answer if you round it off to hundreds? 300. 300. Very good. So you are clear. ठीक है. अच्छा, now what about this number 9999? ये special एक number है. अगर आप इसको tens पे round off करें, what will be the answer if you round it off to hundreds and if you round it off to thousands? So what would be the answers one by one? What would be the answer if you round it off to tens? So who can tell me? What would be the answer if you round it off to tens? Abrish and Mohit. Ma'am, number एक बार बोलेंगे, sorry. Number is written. Can you see the screen? Number is written on that screen. Ma'am, 9,000. 1099. 1,000. Why it is going 1,099? Are you saying this number? Mohit, can you see the screen? मोहित, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नंबर नजर आ रहा है स्क्रीन पे? मैम स्क्रीन ब्लरी है, आई डोंट नो व्हाई. कैमरा ऑफ और ऑन करके ट्राई करें. सॉरी, लाइक मी? अब्रिश, आपको स्क्रीन सही नजर आ रही? यस, ऑफ और ऑन करेंगे ट्राई. मुझे आई डोंट नो व्हाई ब्लरी नजर आ रही है. Which if maybe the signal is weak. Let me share the screen again. Right? So you need to tell me if this is better now. Is it better now? Ma'am, no, fine. Now it is fine. All right. So Abrish is saying this will be the answer if you round off 9,999 to tens. So do you think this would be the answer? No, ma'am. Achha, so what would be the answer? The answer would be 2000. कितना? Ma'am, 10,000. Sorry, sir. 10,000 would be the answer. Abrish, देखिए this is very special case. जब 99, 999, ठीक है, ऐसा कोई नंबर आ जाता है. अच्छा, इस नंबर में अब now you need to do it in a rough work. When you round it off to tens, ये tens है ना? So 10 से next digit is 9. So 9 is a bigger number than 5. So you will add 1 to this. ठीक है, इसको तो आपने वैसे ही 0 कर देना है ना, क्योंकि ये 10 बनेगा. अब you are making this 10 and this is also turning into 10. So ये एक carry है which will keep going on. ये जो carry है ना, ये it will keep going on and it will turn into 10,000. This is a special case. ठीक है, this is 10,000. Are you getting this point? So the rule was for these two digits, but why it is affecting all the rest of the digits? Because there was a carry going on till the end. So this 9-digit number is now at 4-digit number is now a 5-digit number. ठीक है, this is very special case. So now what will be the rounded off answer for thousands? What do you say? What would be answer for thousands? This is thousands. अब मुझे बताएं क्या आंसर होगा? 1000 पे राउंड ऑफ करना है और 100 पे, सॉरी पहले 100 पे करते हैं. 100 पे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर होगा? मोहित एंड अब्रिश,
सेम नंबर इफ यू आर राउंडिंग ऑफ टू 100, तो क्या आंसर होगा बेटे? That प्लीज answer आंसर would द be my answer would be 10,000. तो अब्रिश इज इट क्लियर? देखो 100 से आगे तो वैसे ही हमने जीरो करना है, ये दोनों डिजिट तो जीरो ही होने हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 100 से अगला डिजिट है ये हमें बताता है कि 100 वाले डिजिट का क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है या नहीं करना। ये दोनों तो इन एनी केस जीरो ही होने थे ना। इसने हमें, इस डिजिट ने हमें बताया कि इस 9 में +1 करना है, ठीक है। जब हम इसमें +1 करते हैं तो दिस इज 10 एंड द कैरी इज मूविंग फॉरवर्ड, और इसका आंसर भी आपके पास क्या आता है? 10,000, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट वन, 9,999 को अगर आप थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करते हैं, सो दिस इज योर डिजिट ऑफ 1000, ठीक है। Ma'am, अब ये 10,000. तीनों 10,000 ही आएगा, ये तीनों डिजिट तो वैसे ही जीरो होने हैं, ठीक है। नाउ वी नीड टू सी कि ये 9 9 रहेगा या 10 बनेगा। फॉर दैट वी विल सी द नेक्स्ट नंबर एंड दैट इज बिगर देन 5, सो दिस 9 विल टर्न इनटू 10। सो ये एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसके तीनों राउंडेड ऑफ आंसर्स की वैल्यू क्या आती है? 10,000 आती है, ठीक है। इसी तरह इफ यू राइट 5 9s the same answers will come, ठीक है। 100,000 उसके आंसर्स आएंगे। अच्छा, नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज द डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल द डेसिमल्स आर 123.57, so I want you to round it off to nearest, अब देखिए 10th, what is the rounded off answer to nearest 10th? अब आपको प्लेस वैल्यूज आनी चाहिए, आपको पता है ना 10th is this number, ये है ना 10th, so what would be the answer? Abrish and Moeed, this is the place value 10th, उससे next digit है, what would be the answer? Ma'am, one Hmm. 123.60. 60 या 6, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। मोहित आप भी बेटा अटेंटिव होकर रहिएगा। अच्छा, नाउ व्हाट इज द वैल्यू टू नियरेस्ट वंस? व्हाट इज द राउंडेड ऑफ आंसर टू नियरेस्ट वंस? 123.50. नो नो नो, वंस, ये वंस है, इसका मतलब है ये सब तो खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द राउंडेड ऑफ आंसर टू नियरेस्ट वंस? इसका मतलब है कि हम, अच्छा नियरेस्ट वंस को एक और चीज भी कहते हैं, कभी कभी हम यू लिख देते हैं नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, क्योंकि आप डेसिमल खत्म करें, कभी कभी आप यूं भी लिख सकते हैं नियरेस्ट वंस। सो व्हाट वुड बी द आंसर? इसका मतलब है दिस इज द डिजिट जहां तक हमने राउंड ऑफ करना है, इससे नेक्स्ट डिजिट हमने देखना है, ये सारा तो 0.00 हो जाएगा, तो ये वैसे ही खत्म हो रहा है। इससे अगला डिजिट हम देखते हैं, ये पता करने के लिए कि 3 रहेगा कि 4 बनेगा, बिकॉज इट इज 5, so the answer is 124, ठीक है। नाउ इफ द सेम नंबर वी आर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, so now what would be the answer? This is tens. अब ये 3 तो, ये सारे तो 0 बनने ही है, हमने डिसीजन क्या लेना? हमने डिसीजन ये लेना है कि ये 2 2 रहेगा या ये 3 बनेगा। So what would be the rounded off answer to nearest tens, Moeed? No, 120. 120. Very good. Now you can recall. Very good. अच्छा, now the last one. What would be the nearest answers to hundreds? No, 100. 100. Very good. Now you got the point. ठीक है? So this is how we solve it. ठीक है? Is this practice enough? Do you want to do more practice maybe? Is this enough? Now the idea is clear? बिकॉज जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, वो राउंडेड ऑफ के बगैर नहीं चलते, ठीक है। राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स साथ साथ चलते हैं, दैट्स व्हाई वी रिकॉल्ड इट, ठीक है। अच्छा, नाउ वी विल सी सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट देयर रूल्स, देयर आर 5 रूल्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स हम बुक से ही देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास पिक्चर है, लेट मी बिफोर writing what it is, let me show you the chapter, the curriculum document, that what are the learning objectives of this chapter. These are the 3 learning objectives. This is just 1 week chapter, ठीक है। First learning objective is identify and state the number of significant figures in a number, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 3400, आपने बस ये बताना है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक नंबर लिखा हुआ है 2.5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक नंबर लिखा हुआ है 1757.9, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज अ नंबर। आपके पास एक नंबर गिवन होगा, आपने ये बताना है इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये आप तभी बता सकते हैं व्हेन यू आर वेल अवेयर ऑफ द रूल्स, ठीक है। सो हम सबसे पहले ये देखते हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये आपके लिए एक नया वर्ड है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा, मैथ में what do you mean by figures? Do you know what is Numbers. figures? Numbers, ठीक है। significant figures में figures का तो मतलब है numbers। अब मुझे ये बताएं, ये इंग्लिश वर्ड है significant, significance, इसका क्या मतलब Unimportant. होता है? important,
ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि कितने नंबर in that particular number are important number. For example, if I'm writing 35,000, so there are 5 digit, total 5 digit है. Significant figures का ये मतलब है रूल के मुताबिक out of these 5 digits how many digits are important. ठीक है, एक नंबर आपके पास 3.790, इस डेसिमल में कितने डिजिट्स, 4 नंबर है ना, 4 डिजिट्स हैं, लेकिन इन 4 में से कितने डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट फॉर्म में हम यू लिखते हैं S.F. ठीक है, कई क्वेश्चंस में आप देखेंगे ऐसे लिखा होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, इसका मतलब इसको रीड हम कैसे करते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, अच्छा, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स साथ साथ चलते हैं. ये मैं आपको सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बताऊंगी. फॉर द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट हमने सिर्फ रूल पढ़ने हैं और फिर हमने सिर्फ ये बताना है कि कोई गिवन नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. जरूरी नहीं होता कि ये 5 डिजिट्स हैं तो पांचों ही सिग्निफिकेंट हो. ठीक है, रूल के तहत हमने डिसाइड करना है. अच्छा, कुछ रूल तो बहुत ही ऑब्वियस हैं लेकिन कुछ रूल बहुत ही स्ट्रेंज है. ठीक है, मोहित, आर यू अटेंटिव इट बिकॉज दीज रूल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आर यू पेइंग अटेंशन? ऑलराइट, सो एक सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यूज क्यों करते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस कॉन्सेप्ट को यूज करने का द मेन पर्पस इज दैट वी नीड टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. ये आपने चीज ज़हन में रखनी है कि जितना कोई नंबर ज्यादा एक्यूरेट होगा ना उतना ही उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे. ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी व्हेन वी विल लर्न अ रूल जो कि आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा क्योंकि यूजुअली हम अब तक मैथ में ऐसा कहते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, और ये अभी आप टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसके बाद अब आपने आगे जाके क्लास 9 में ये टॉपिक दोबारा पढ़ना है. ठीक है, उससे पहले अब आपने जितना इस टॉपिक को पढ़ना था वो आप 7 में पढ़ लेंगे. अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू द रूल 1. ठीक है, अच्छा, रूल 1 इज वेरी सिंपल. रूल 1 सेज all non-zero digits are significant. Are you getting the point? All non-zero, this is the first rule. So all non-zero digits are significant. So if there is any number which is not zero, any digit वो significant consider होता है. So now look at this practice now 2B. So you need to tell me one by one, keeping in mind the first rule. अभी हमने एक ही रूल पढ़ा है और वो रूल हमें ये बता रहा है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं इन द नंबर, दे आर ऑल सिग्निफिकेंट. So in A part, it is written 192. So how many significant figures? 3. 3 significant figures. मोहित, ये बात समझ आ रही है? ठीक है? Yes, ma'am. Right. So Mohit, how many significant figures in part B? Ma'am, 5. Ma'am, 5. 5 significant figures. चाहे वो डेसिमल है चाहे वो सिंपल नंबर है. If there is non-zero number, that is significant. ठीक है? How many in C part? 1. 1 significant figure. Right? How many in D part? 2. 2 significant figures. ये चीज क्या है? This is the first rule that all the non-zero digits are significant. Now the second rule. 5 rules हैं total हमारे पास. ठीक है? Second rule is all zeros between non-zero digits are significant. The zeros which are in between non-zero numbers, they are also significant. Like अगर हम लिखें ना 1001, तो they are all significant. अगर मैं लिखूं ना 1001, like मैं लिखूं 1001, तो उसमें सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपके पास. ठीक है, वाई? बिकॉज ये 1 एंड 1 तो नॉन, ये वैसे ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज दे आर नॉन जीरो, और इन दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरोस हैं दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट. तो इसका मतलब है 1001 में देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये बात सेकंड रूल समझ आ रही है? सेकंड रूल इज इफ देयर आर जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरोस नंबर, सो दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट, राइट? सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए पार्ट? 5062. 4. 4 significant figures. ठीक है मोहित, how many in B part? 3. 3 significant figures. How many in C part? 5. 5 significant figures. How many in D part? 6. 6 significant figures. Mohit, are you there? Yes. Beta, please pay attention, and when I ask you, you need to answer. ठीक है? So what are the 2 rules? पहला रूल हमने पढ़ा कि all the non-zero digits are significant. Second rule हमने क्या पढ़ा? The zeros which are in between the non-zero numbers, they are also significant. अब देखिए, it is true for both normal numbers and the decimal numbers also. Now just look at this one. अब ये rule 3 is only for decimals. Decimal numbers में all zeros which are before non-zero, they are not significant. The zeros which are before non-zero numbers, they are
not significant. For example, just look at this number 0.057. So how many 0.057? How many significant figures are in this number according to rule 3? How many? Abrish and Mohit, bete jaldi se bataye. There are 4 digits. 4 From digits hain. 3. How 3? From 2. Two significant figures hain. Mohit, why 2 significant figures? Because we have just learned in decimals the zeros before the non-zero number, they are all insignificant. ये दोनों zero significant नहीं है. They are insignificant. ठीक है? According to the rules, they are not significant figures. इनको हम significant figures count नहीं करेंगे. ये चीज clear हुई है मोहित? और ये सिर्फ हमारे पास decimals में है. In decimals, all the zeros before a non-zero are not significant. अब मोहित आपने मुझे बताना है how many significant figures are there in part A? 0.021. जल्दी से बताएं बेटे. 1? Why 1? Sorry? Please repeat the number. Can you see it on your screen? 0.021. Yes, ma'am. 0.021. How many significant figures? जी बेटे? 2. 2 significant figures. मोहित आपको समझ आई है बात या नहीं आई? अगर आपको रूल्स नहीं आएंगे ना बेटे तो ये पूरा चैप्टर आपको नहीं समझ आएगा. So if you are doing anything else, please leave it. You need to be attentive. ठीक है? You need to answer the questions. What about B part? How many significant figures? अब ये बहुत important है. So you both can tell me one by one. How many significant figures in the number 0.603? 3. So Abrish is saying 3 significant figures. Mohit, what do you say? How many? 3. Ji? 3. So why 3? Why this 0 is not non-significant? Because अच्छा नहीं बल्कि मुझे ये बताएं which 2 rules you have used? ये सही है 3 significant. But second and third. Very good. Second and third. ये जो पहला वाला 0 है ये non-significant है. Why? Because रूल 3 कहता है हमें. रूल 3 कहता है कि ये नॉन सिग्निफिकेंट है. और ये जो 0 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है रूल 2 हमें बताता है कि ये सिग्निफिकेंट है. राइट? ये सिग्निफिकेंट नंबर है. So that's why there are 3 significant figures. Very good, Avrish. So now Mohit, you can tell me how many significant figures in part C? 0.0174. 00. 6 digit है. How many digits are significant? 3. 3 significant figures. Why? कौन सा रूल है? रूल 3. ठीक है? रूल 3 is telling us कि ये तीनों zeros जो हैं ये non significant है. ठीक है? Now what about D part? Out of 4, 5, 6 digits, how many are significant? 5. 5 significant figures. ठीक है? Only this 0 is non-significant according to rule 3. और ये हमने second and third rule. Second and third rule, very good. ये जो 2 zeros in between आ रहे हैं, they are significant because rule 2 is saying. ठीक है? Actually हमने rule 1 भी use किया because ये 198 तभी तो significant है. ठीक है? So very good. So are you clear? मोहित third rule तक बातें clear है या नहीं? Yes, ma'am. So now this is very important. यहाँ से आप थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि व्हाई इट इज लाइक दिस. अब तक तो हमें मैम कहती थी कि 1.70 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1.7 ही बस लिख दें. ऐसे ही होता है ना, जब आंसर आता है 1.70 तो हम कहते हैं 1.7 लिख दें. जब आंसर आता है 2.600 फॉर एग्जांपल तो हम उसको क्या लिखते हैं? हम उसको 2.6 लिखते हैं. अब तक तो हम ऐसा करते हैं. सो बट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये कह रहे हैं कि जो डेसिमल के बाद जीरोस आते हैं लास्ट में, दे आर सिग्निफिकेंट. सो रूल 4 इज in a decimal. अब rule 3 and 4 दोनों rules decimals के हैं. In a decimal, all zeros after a non-zero digit are significant. So इसका मतलब ये है कि they are significant figures की अगर आप सोचें तो 1.7 के पास 2 significant figures हैं, लेकिन 1.70 के पास 3 significant figures हैं. Same is the case here. 2.6 के पास 2 significant figures हैं, लेकिन 2.600 के पास 4 significant figures हैं. ठीक है? और इसकी रीजन क्या है? व्हाई इट इज लाइक दिस? बिकॉज 2.6 में आपके पास जो मेजर ऑफ एक्यूरेसी है, मेजर ऑफ एक्यूरेसी यानी आपने कितना एक्यूरेट आंसर निकाला है, मेजर ऑफ एक्यूरेसी इज लेस. ठीक है? यहां पर हम ये सोचते हैं कि 2.600 में आपने डेसिमल के बाद 3 डेसिमल पॉइंट तक उसको कैलकुलेट किया है, एंड दैट इज टेलिंग यू कि दिस नंबर इज मोर एक्यूरेट बिकॉज यू हैव कैलकुलेटेड दिस नंबर टिल 3 डेसिमल प्लेसेस. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes. Is it? So this is a tricky rule. This rule says if there is a zero at the end of a decimal number, so we usually ignore it. लेकिन ये significant figures में ये जो दो numbers हैं जो zeros आखिर में आते हैं
वो एक्यूरेट होते हैं। रूल 4 और 5 थोड़े कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सो रूल 3 एंड रूल 4 दे आर फॉर डेसिमल्स, ठीक है। सो नाउ यू नीड टू टेल मी, आप देखें आपके पास 4 रूल हैं। नाउ द थिंग्स आर गेटिंग ट्रिकियर। सो व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? डू यू, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट रूल नंबर्स? 0.10 3 डिजिट हैं, कितने से? 2 सिग्निफिकेंट। सो व्हिच वन इज नॉट सिग्निफिकेंट? 0 व्हिच 0? फर्स्ट 0। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज रूल 3 ये कहता है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये रूल 4 कहता है हमें, ठीक है। सही है मोहित, ये बात समझ आ रही है? ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज डेसिमल्स में जो 0 पहले आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है बिकॉज हमने अभी पढ़ा है कि डेसिमल में जो लास्ट पे 0 आते हैं डेसिमल्स में, दैट इज सिग्निफिकेंट। नाउ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स इन सी पार्ट? टोटल 6 डिजिट्स हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? मोहित आप मुझे बताएं। ऑल 6। तो मोहित आप क्या कहते हैं? मैम ऑल। मोहित व्हाई दिस लास्ट 0 इज सिग्निफिकेंट? व्हिच रूल? मैम वो नंबर के बाद आ रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल द 4। रूल 4। दिस इज रूल 4। व्हाट अबाउट दिस वन? ये कौन सा रूल रूल बता 2। रहा है कि ये भी रूल 2, ठीक है। जब दो नंबर्स के बीच में 0 आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। वेरी गुड। सो नाउ बी पार्ट। जी हु विल टेल मी? दोनों बताएं बल्कि। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? देयर आर 5 डिजिट्स। मैम 3। मोहित कौन से 3 सिग्निफिकेंट है? कौन से 3 सिग्निफिकेंट है मोहित? मैं फिर से स्क्रीन ब्लरी हो जा रही है। मैम आई कैन सी 6 9 एंड 0। नहीं नहीं, ये बी पार्ट की बात हो रही है। 0.0500। इनमें 3, Abrish is saying 3 are significant. So I'm Yes, asking ma'am. you which 3 are 2 and significant? 4. Which 3? मैम 500 Sorry? 500। 500। वेरी गुड, ये 3 सिग्निफिकेंट है और ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। वेरी गुड। सो नाउ द डी पार्ट। मोहित आप ही बता दें 6.090 में कितना सिग्निफिकेंट है? 4 सिग्निफिकेंट। वेरी गुड। सो अब्रिश हैज लाइक क्लियर्ड ऑल द 4 रूल्स, ठीक है। मोहित आपने अभी तक क्लियर नहीं किए, मुझे आंसर्स बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। अच्छा नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट वन, जैसे सेकंड लास्ट कंफ्यूजिंग था ना, लास्ट भी कंफ्यूजिंग है। दे आर सेइंग द जीरोस एट द एंड ऑफ अ होल नंबर। अब देखो रूल 3 और 4 जो है वो आपका डेसिमल्स का रूल है, लेकिन रूल 5 इज फॉर होल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल्स की बात नहीं हो रही, होल नंबर्स की बात हो रही है। सो रूल 5 ये कहता है कि डेसिमल्स में, होल नंबर्स में जो राउंडेड ऑफ लास्ट वाले जीरोस हैं, दैट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये जो लास्ट में जीरोस आते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अच्छा अब नाउ व्हेन दे विल बी सिग्निफिकेंट, दे आर सेइंग इट डिपेंड्स ऑन द राउंडिंग ऑफ पोजीशन। देखो जैसे 3800 meters, it is corrected to nearest 10 meters. अच्छा इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये देखें आपके पास एक एग्जांपल, ये वाला, this scenario. How many significant figures does 7500 have? So there are 3 students. Where is the third one? Yeah, 3 students and they are telling you something. So Bernard is saying the number 7500 has 2 significant figures. Sarah is saying the number 7500 has 3 significant figures, and Raju is saying the number 7500 is having 4 significant figures. ठीक है, now who is correct? ठीक है, so for the answer, अब ये this fifth rule is not absolute, इस पर discussion हो सकती है, like इसमें ये depend करता है कि ये number 7500 if it is rounded off or to which place value it is rounded off. So discussion says कि let's consider a number 7498. अब आपने बहुत ही ध्यान से ये बात सुनी, ये एक नंबर था, ठीक है। अगर इस नंबर को हम नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करें, नियरेस्ट 100 पे, तो क्या आंसर आएगा? 7498। अगर हम इसको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करें, हंड्रेड्स पे, तो क्या आंसर आएगा? मैम मोहित एंड अब्रिश 7500। 7500, ठीक है। सो 7500। 7500। सो इसके अंदर आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर आप इसी नंबर को नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करें, टेंस पे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? टेंस पे फिर आंसर क्या आएगा? 7500 यस नियरेस्ट टेंस पे ना। देखिए 7498 है ना, आपने नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना है, लेकिन टेंस के ऊपर 9 है, ये वही स्पेशल केस है।
So this 5 is giving a 1 to this. 5 तो 0 हो गया, लेकिन this 9 is 10 now, और ये carry आगे चला गया, right? So this answer is also 7500. लेकिन now the significant figures are 3. Why? Because the rounding off is at tens. ठीक है, सो ये तीनों सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है ये वाले तीनों सिग्निफिकेंट है, लास्ट वाला एक जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है क्योंकि राउंडेड ऑफ हुआ है. ठीक है, अब देखिए ये दोनों, अब इसके मुताबिक, इस डिस्कशन के मुताबिक, इफ यू थिंक बर्नार्ड एंड सारा दे आर बोथ राइट, बिकॉज बर्नार्ड इज सेइंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज ही इज थिंकिंग के ही इज राउंडिंग ऑफ टू हंड्रेड्स, एंड Sarah is saying they are having 7500 is having three significant figures because it is rounded off to three significant figure. Now what about Raju? ठीक है, so राजू ये कह रहा था कि दिस नंबर इज हैविंग फोर सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, और इसमें आई एम नॉट गोइंग टू आंसर बट दे आर आस्किंग यू टू थिंक ऑफ अ नंबर व्हिच इज राउंडेड ऑफ टू 7500. कोई ऐसा नंबर ढूंढें कि जो फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स तभी हो सकते हैं जब वो 7500 पे राउंड ऑफ हो. सो कैन यू थिंक ऑफ अ नंबर? कैन यू थिंक कि कैसे कोई नंबर 7500 पे राउंड ऑफ हो सकता है? कोई ऐसा नंबर आपके ज़हन में है जिसका आंसर राउंडिंग ऑफ के बाद 7500 आ जाए? मैम 7499 rounded to Rounded to? Rounded to? अगर यू आर टॉकिंग अबाउट 7499, सो किस पे राउंड ऑफ करें? 10 मैम. टेंस पे करेंगे तो ये टेंस पे राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास 7500 बन जाता है. यस Yes मैम. वेरी गुड. सो अब्रिश, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर नंबर? वेरी गुड मोहित, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर नंबर? डेसिमल में चले जाएं, थोड़ा सा डेसिमल्स में सोचें, कोई ऐसा नंबर आपके ज़हन में आता है जिसको राउंड ऑफ करें तो आंसर 7500 आ जाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर है ना. अब देखिए, अगर आप डेसिमल में जाएं और अगर आप कहें 7500 एंड लेट्स से 3.5 नहीं 4, सो अगर आप इस नंबर को होल नंबर में राउंड ऑफ करें तो होल नंबर में यहाँ पे राउंड ऑफ होगा तो दिस इज 4, सो दिस विल बी 7500.4 कर लें. सो बिकॉज दिस 0.4 विल बी गॉन तो इट विल बी 7500. ठीक है, सो बहुत से ऐसे नंबर्स हैं एक्चुअली जो आपको 7500 को राउंड ऑफ करेंगे. सो एक्चुअली राजू इज आल्सो राइट, मे बी बिकॉज ही इज टेकिंग दिस नंबर एज 7499. ठीक है, सो नाउ दे आर आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि कैन 7500 हैव फाइव significant figures? Can this number have five significant figures? What do you think? No, it cannot be because there are total 4 digits, so it's a no. ठीक है, एक नंबर के पास जितने डिजिट्स हैं उससे ज्यादा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते ना. बल्कि आप थोड़ा सा सोचें, एक मेथड है. ओ, हाउ कैन 7500 हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर? अभी हमने एक पीछे रूल पढ़ा है, रूल 4 पढ़ा है हमने. सो कैन यू टेल मी रूल 4 के ज़हन में रखते हुए कि हाउ कैन 7500 हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर? क्या करें इसके साथ? रूल 4 को याद करते हुए मुझे आंसर बताएं. 0.0 कर दें, यानी 7500.0 कर दें. तो अब आपके पास ये जो लास्ट वाला डिजिट है, बिकॉज दिस इज आल्सो सिग्निफिकेंट, सो नाउ 7500 इज हैविंग 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यस, इट इज पॉसिबल, राइट? सो आई होप दिस डिस्कशन इज मेकिंग दिस क्लियर. अब देखिए, आपके पास फिफ्थ रूल में हमेशा आपके पास होगा ये लिखा हुआ कि ये करेक्ट किस नंबर पे किया गया है. देखें, जैसे आपने उसको ज़हन में रखते हुए फिफ्थ रूल अप्लाई करना है. 3800 मीटर्स करेक्टेड टू 10 मीटर्स, ये कहाँ पे करेक्ट हुआ है? 3800 meters corrected to 10 meters. इसका मतलब है ये इस पे राउंड ऑफ हुआ है, टेंस पे, राइट? सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दिस नंबर इज हैविंग? जी बेटे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दिस नंबर वुड बी हैविंग, कीपिंग इन माइंड दिस डिस्कशन? जब वो टेंस पे राउंड ऑफ हुआ था तो फिर उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे? जब वो 10 पे राउंड ऑफ हुआ था तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स थे. तो इसका मतलब है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दिस फर्स्ट नंबर इज हैविंग? मोहित एंड अब्रिश, 3800 is having how many significant figures if this is the number जहां पे राउंडिंग ऑफ हुई है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं चारों में से? 3 सिग्निफिकेंट. क्यों 3 सिग्निफिकेंट है? जस्ट लुक एट दिस वन ना, ये वो नंबर है जिस पे राउंड ऑफ हुआ है 3 डिजिट्स पे. जैसे ये देखें ना अब्रिश, इस क्वेश्चन को देखें, कीप इन माइंड द एग्जांपल वी हैव जस्ट डिस्कस्ड. लेट मी शो यू. ये देखें, जब 3498 को टेंस पे राउंड ऑफ किया था, टेंस पे, तो इसका मतलब है कि ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स थे क्योंकि राउंडिंग ऑफ टेंस पे हुई है ना, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट थे. ये चला गया था तो हमने कहा दे रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो सेम इज द केस हियर. जब आपने राउंडिंग ऑफ टेंस पे किया है तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है, जस्ट द लास्ट जीरो इज नॉट. ठीक है,
ये आपने याद रखना है। अब देखिए 25,000 किलोमीटर्स। मोहित आपने मुझे आंसर बताना है। नियरेस्ट किलोमीटर पे आपने इसको राउंड ऑफ किया, तो किस जगह पे राउंड ऑफ हुआ है? आपको ये बात समझ आ रही है? किस डिजिट पे राउंडेड ऑफ है ये नंबर 25,000 किलोमीटर्स? ये आपके पास यहां तक राउंडेड ऑफ है, यानी ये दो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये तीनों आपके क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, आपने इसको किलोमीटर्स पे राउंड ऑफ किया है, तो ये तो सारे किलोमीटर 1000 किलोमीटर होते हैं ना, ये सारा राउंडेड ऑफ है। फॉर एग्जांपल आपके पास कैलकुलेशन थी 25,392, सो आपने इसको किलोमीटर पे राउंड ऑफ किया है। आपने इसको, ये इतने मीटर्स थे ना, तो आपने इसको कहा कितने किलोमीटर्स, तो आपने इसको कहा 25,000 किलोमीटर, बिकॉज आपने राउंड ऑफ कर दिया उसको। ठीक है, सो आपने इसको 25,000 किलोमीटर्स पे राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब यू हैव इग्नोर्ड दीज थ्री नंबर्स, सो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपके पास टू सिग्निफिकेंट प्लेसेस, significant figures. ठीक है, so now the last one, 100,000 grams corrected to nearest 10,000, so nearest 10,000, so this is 100,000 and this is 10,000, so इसका मतलब आपके पास there are two significant figures here. ये बातें समझ आ रही है कैसे हो रहा है? ये सबसे कंफ्यूजिंग, लास्ट टू वाले कंफ्यूजिंग है थोड़े रूल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हो सकता है कुछ ऐसी वैल्यू 1000 एंड लेट्स से 103,509, ये कुछ ऐसा नंबर है, लेकिन ये राउंडेड ऑफ है 1000 पे यहाँ से, तो इससे अगला डिजिट 3 था, तो ये सारे हमने जीरो कर दिए और इसको हमने 10 ही रहने दिया, तो इसलिए ये 10 सॉरी 100,000 बन गया, क्योंकि इन चारों को हमने इग्नोर किया है। तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और बाकी चारों चूंकि इग्नोर हो चुके हैं, तो ये जीरोस बन गए, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये चीज समझ आ रही है बेटे? लास्ट पार्ट, लास्ट वाला रूल समझ आ रहा है? ठीक है, सो लास्ट रूल हमेशा हम ये देखते हैं कि किस फिगर पे राउंड ऑफ किया गया। जिस फिगर पे राउंड ऑफ होता है उतने हम, उससे पहले वाले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये रूल सिर्फ होल नंबर्स का रूल है। ठीक है, ये डेसिमल्स का रूल नहीं। सो आर द रूल्स क्लियर? शुड वी मूव ऑन टू द डिस्कशन? क्या हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें हमने ये बताना है कितने सिग्निफिकेंट रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? शुड वी? राइट, सो लेट्स सी। सेकंड टॉपिक हम कल करेंगे, आज हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। ये राउंडेड ऑफ है, ऑलराइट, एक सेकंड, बुक 2 नहीं, दिस इज आल्सो बुक 1, दिस इज आल्सो बुक 1, इट इज चैप्टर 5। ठीक है, दिस इज आल्सो बुक 1। सो दिस फिफ्थ क्वेश्चन आपकी करिकुलम के अंदर भी फॉर द फर्स्ट टॉपिक देयर आर ओनली टू क्वेश्चंस, वन इज क्वेश्चन नंबर 5, लेट मी शो यू, ये वाले क्वेश्चन हमने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 12। ठीक है, सो क्वेश्चन 5 एंड 12, 12th क्वेश्चन में कुछ और होगा, इसमें सिर्फ हमने ये बताना है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। 5 एंड 12 दो ही क्वेश्चन हमने इस बुक के करने हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, और इसके अलावा हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, और इसके बाद ना हमारे पास वी हैव वर्कशीट्स, वो हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपने मुझे बताना है, वी नीड टू जस्ट स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कीपिंग इन माइंड ऑल द 5 रूल्स। ठीक है, so starting from the first one by one, मुझे बल्कि दोनों बताएं, how many significant figures in A part? मोहित, कितने significant figures हैं A part में? all 5 जी, figures all 5। मोहित आप आंसर नहीं करते हो बिल्कुल भी, all 5, क्योंकि नॉन जीरोज हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, देयर इज वन जीरो इन द मिडल, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, वेरी गुड अबरीश। नाउ मोहित, व्हाट अबाउट द बी rule पार्ट? 2 is used जी, फर्स्ट एंड सेकंड, ma'am राइट? yes फर्स्ट रूल बिकॉज ये चारों सिग्निफिकेंट है, सेकंड रूल बिकॉज ये जीरो सिग्निफिकेंट। ना मोहित आप मुझे बताएं, बी पार्ट में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 7 डिजिट्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट हैं? ma'am 4 ma'am 4 ma'am दोबारा देखें, ma'am let me see again ऑलराइट, अबरीश आप भी देखें एक बार, ma'am 5 ऑलराइट। मोहित आप क्या कहते हैं? 5 5 सिग्निफिकेंट, अच्छा, व्हाई? अब ये देखिए कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 4 लिख दिया तो योर क्वेश्चन विल गो रॉन्ग, एग्जैक्ट नंबर चाहिए उतने सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये दोनों आपके ख्याल में सिग्निफिकेंट है या नहीं? फर्स्ट टू नहीं है मैम ये नहीं है, सो व्हिच रूल इज सेइंग? रूल नंबर 3, रूल 3 हमारा ये कहता है कि जो जीरोस हैं इन डेसिमल नंबर्स, द जीरोस इन द स्टार्ट दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो और जीरोस हैं, ये जीरो, ये वाला जो जीरो है,
ये हमारे पास कौन सा रूल है? सेकंड रूल है, जो कि कहता है कि इफ देयर इज अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस दैट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला जीरो है, ये रूल 4 आपको ये कहता है कि डेसिमल्स में जो एंड पे जीरो आता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, सो दीज 5 आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सी पार्ट। अब इसको याद रखना है और मुझे बताएं सी पार्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इट्स अगेन अ डेसिमल, रूल 5 तो लग ही नहीं सकता। तो पहले 4 रूल को याद रखना है और मुझे बताएं कि ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यू बोथ कैन आंसर। How many significant figures? मैम ऑल द नंबर्स। All the numbers. मोहित आप क्या कहते हैं? So all the numbers तो कितने हैं ये total? 3, 6 and 8. So Abrish is saying 8 significant figures. What do you say, Mohit? Yes, ma'am, I agree. So you need to tell me, Mohit, why the last two zeros are significant? Which rule? Ma'am, rule number 4. rule 2, Rule 4. Rule 4. ठीक है, ये rule 4 है. So what about this zero in the middle? ये कौन सा rule है? rule 2, दो नॉन जीरोस के बीच में, ये रूल 2 है. दो नॉन जीरोस. व्हाट अबाउट दीस टू जीरोस? ये कौन सा रूल है? ये भी रूल 2 ही है. rule 2. दो नॉन जीरोस के बीच में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. वेरी गुड. तो देयर आर 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स. वेरी गुड. अच्छा, अब आप देखिए, आपको साफ नजर आ रहा है डी, ई और एफ पार्ट में वी नीड टू अप्लाई रूल 5. ठीक है, अब रूल 5 में मुझे लगता है कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन है. सो अब आपने बड़े ध्यान से देखना. 2900 टू द नियरेस्ट टेंस. अब देखिए, इसका मतलब है कि ये आपके पास टेंस है ना, तो ये यहां तक राउंड ऑफ हुआ हुआ है. So how many significant figures? Ma'am, all the 3. 3 significant figures. सिर्फ जो लास्ट वाला जीरो है ना, वो बिकॉज यहाँ तक राउंड ऑफ हुआ है ना, तो इसका मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. इस जगह पे फॉर एग्जांपल ये होता है 2907. नहीं, 07 तो राउंड ऑफ नहीं होता. 3. तो इसका मतलब इन्होंने टेंथ पे राउंड ऑफ किया ना, तो इसको राउंड ऑफ किया तो ये 3 चला गया. अब ये 3 चला गया तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है बेटे, वेरी गुड. मोहित, ये बात आपको भी समझ आई है ना? टेंथ पे क्या होता है? 3 सिग्निफिकेंट. अब नियरेस्ट 100, इसका मतलब है ये यहाँ तक राउंड ऑफ हुआ है. नाउ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2. 2 significant. Very good, very good. 2 significant figures. क्योंकि ये 2 डिजिट्स सिग्निफिकेंट है. ये जो राउंडेड ऑफ नंबर्स हैं, ये असल में कोई और नंबर्स थे जो कि राउंड ऑफ हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं, तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट एनी मोर. ठीक है, ये उस नंबर का पार्ट नहीं थे, ये राउंडेड ऑफ वैल्यूज हैं. ठीक है, सो नाउ जस्ट लुक एट दिस वन. टू द नियरेस्ट होल नंबर, यानी कि यहाँ तक राउंड ऑफ हुआ है, यहाँ तक. अब हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? हाउ मेनी, मोहित? एफ पार्ट में हाउ मेनी Ma'am, सिग्निफिकेंट फिगर्स? all the numbers. ऑल 4. ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो 2900.2, तो ये कैंसिल हो गया ना. ये हो सकता है वो 2900 पॉइंट लेट्स से 27, तो ये राउंड ऑफ हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. सो एक्चुअली ये 2900 के चारों डिजिट्स जो हैं ये आपके पास सिग्निफिकेंट है. ठीक है बेटे, सो इज दिस क्लियर? Yes. राइट. सो नाउ आई विल गिव यू